Welcome students, class 11th, exercise 1.5, question number 4. We are given here, this is the universal set consisting of the 9 elements from 1 to 9, and this is A, 2, 4, 6, 8, and B, this is 2, 3, 5, 7. Now we have to prove this and verify this. De Morgan. Now let's come here. Let us take A union B first. What is A union B? It's the union of two sets 2, 4, 6, 8, which is A union B 2, 3, 5, 7. We have to take union of these two sets. It comes to be equal. It is 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Now, what about A union B ka whole complement? A union B ka whole complement. It is obviously union minus A union B. And union is 1, 2, 3, 4. Universal, sorry, it is universal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Minus A union B. What is that? It is 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Union minus A union B. Let's 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 2, 3, 4, 5, 6, and 8. It is only 1 comma 9. Let us see here. These two sets 2, 3, 4, 6, 8, and 2, 3, 5, 7. 2, 3, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7. It is 2, 4, 6, 8, and it is 2, 3, 5, 7. It is 1 comma 9. ये जब यहाँ से निकालेंगे, इसमें से 2 भी निकालेंगे, 3 भी निकालेंगे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, तो यहाँ 1 और 9 बचता है. अब नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो हमारा LHS है वो किसके बराबर निकला? 1 comma 9 के बराबर. अब राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे उसके लिए. तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन माइनस ए. यूनियन क्या है हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. इससे हम ए को बाहर निकालेंगे. ए क्या है? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. देखो 2 गया, 4 भी गया, 6 भी गया, ए भी गया. तो ये क्या चीज आ गई? 1, 3, 5, 7 and 9. Similarly, we have to find B complement that comes equal to universal minus B. वो हमारे क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इसमें से हमें क्या बाहर निकालना है? B. B सेट क्या है हमारे पास? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5 and 7. ये 2 भी गया, ये 3 भी, ये 5 भी, ये 7 भी. तो वो क्या हो गया? 1, सही बात है, और 4, 1, 4 और 6 और 8 और 9 ऐसे आता है. अब इन दो चीजों का इंटरसेक्शन करना है. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा? 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. और इंटरसेक्शन 1, 4, 6, 8, 9. 1, 4, 6, 8, 9. क्या क्या इसमें आता है? 1 इज देयर, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो 9 एक है. तो ये हमारा RHS आ गया. This equation we can call it first and this we can call it second. On comparing first and second, we came to know about LHS is equal to RHS. It is evident here. Now let's move towards the next question.
ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, सिमिलरली जिस तरह से वहां से मैंने किया था, एग्जांपल्स तो वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 और ए और बी वैसे ही सेट्स हैं। तो ऑब्वियसली इसको भी LHS इज इक्वल टू RHS करना है। पहले ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इसी तरीके से यहाँ से ए कंप्लीमेंट पहले, फिर बी कंप्लीमेंट जो ऑलरेडी फर्स्ट में सॉल्व किए गए हैं। फिर इनको लेफ्ट और राइट साइड करके देखते हैं सेट्स के एलिमेंट्स बराबर हैं। दे मस्ट बी लास्ट at last equal sets. This set and this set, they must be equal. Now it is left homework for you. Question number 5. Now what is question number 5? It says draw appropriate Venn diagrams of the following. First, A union B का whole complement. A union B का whole complement. इसका आपने Venn diagram डालना है. Venn illustrations. Already we had discussed about Venn illustrations. Now let's move. It's universal set. Now this is A. This is set A and this is set B. What is A union B? I think A union B is this part and this part. This is A union B. And what is its complement? All that excluded from these things. It is U minus A union B. If we talk about A union B का whole complement, it is just like that. Union subtracted A union B. That means it is this shaded portion. Let's shade it. This all must be shaded. This is the Venn illustration for A union B का whole complement. Similarly, we have to find A intersection, A complement for next A complement intersection B complement. It's second part. A complement intersection B complement. We just came about to know the question for first part that this is what A intersection, A complement intersection B complement. As per the Venn illustration, this must be same as that of this case. Because if it's A complement, that means you have to exclude A out of this universal set. That is these things. And similarly, intersection B complement. B complement, that is also this. इनका जो आप इंटरसेक्शन करेंगे तो यही पोर्शन बचेगा. इसका भी सेम यही आंसर आएगा. Just like it is. De Morgan's proved by Venn illustrations. Now next, A intersection B का whole complement. Now third, A intersection B इसका whole complement. हाँ, इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे. This is universal set. और यहाँ पर A हमारा और यहाँ पर B हमारा. A intersection B निकालेंगे हम पहले. अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारा A intersection B है. ये चीज. अब A intersection B का whole complement, that is called A U minus A intersection B. तो इसके अलावा जितना भी हमारा बचता है, इस पोर्शन के अलावा ये जो इंटरसेक्शन का आ रहा है, that must be shaded. तो ये हमारा आ गया क्या? ये पूरा का पूरा जो भी है, ये इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट. इसी तरीके से दूसरा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, वही डे मॉर्गन क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट, तो वो भी इसी के बराबर आएगा. उसका भी यही आंसर आएगा, सेम एज दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. लेट U be the set of triangles in a plane. U is equal to set of triangles in a plane. मगर कौन सी ट्रायंगल्स है? एक एंगल 6 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए. व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इज एन सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. क्योंकि बाकी जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनमें तो 60 डिग्री नहीं आता है. ठीक है. ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल क्या होता है? 60 डिग्री. 60 60 60 180 और उसके तीन साइड्स भी बराबर आते हैं. पढ़ा होगा आपने 9th 10th में. क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है. ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट. देखो, ए खुद ए और यूनियन, इसका यूनियन ए कंप्लीमेंट के साथ, एक ये खुद ए और इसका ए कंप्लीमेंट के साथ पूरा जितना भी बचता है वो किसके बराबर आता है? वो तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया. वेन इलस्ट्रेशन से आपको ये पार्ट सब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के.
अब दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट क्या है, फाई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखो ये फाई कंप्लीमेंट क्या होता है, फाई यहाँ है ही नहीं, इसका कंप्लीमेंट क्या है, फिर जो यहाँ है ही नहीं उसके अलावा क्या बचता है, उसके अलावा तो यूनिवर्सल सेट बचता है। तो फाई कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए के साथ, इस ए के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या है, इस यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या है, क्या चीज मिलती है, ये ए खुद। तो ये हमारा आ गया ए। इसी तरह से तीसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए के अलावा जितना भी है, तो वो खुद भी ए आएगा, वो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, यानी ए इतना, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे पूरा जो बचता है, क्या बचता है इन दोनों के इंटरसेक्शन में, क्या आता है, फिर कुछ नहीं आता है, दैट इज फाइव। तीसरे पार्ट को फाइव। इसी तरह यूनियन कंप्लीमेंट, यूनियन के बाहर जो कंप्लीमेंट है, यूनियन के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, तो फाइव सेट है। लास्ट वाला मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, यूनियन कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यूनियन कंप्लीमेंट फाइव के बराबर है इंटरसेक्शन ए। फाइव का ए के साथ क्या इंटरसेक्शन है बताओ, यानी जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं, जो सेट एग्जिस्ट नहीं होता उसके ए के साथ क्या मिलता होगा, क्या इंटरसेक्शन होता होगा, कुछ नहीं, दैट्स इक्वल टू 5। I think this must be very clear to you. Now we have completed exercise 1.5. Next lecture we will meet inshallah with exercise 1.6. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.